دعائیں ہیں مومنین کے دلوں میں کہ غیرت اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ کسی ذاکر یا خطیب یا عالمین کو بھی نہیں کہہ سکتے، مالک تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ پروردگار تمام مومنین کی حاجات شریعہ پوری فرما، بالخصوص ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے پاک سیدہ طاہرہ کو پاک ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین کا آواز تھوڑا آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، ان کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، محمد و آل محمد صلوات۔ آپ کو اپنے خادم کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ کل جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک محفل کی جشن کے حوالے سے اس میں پڑھنے کا اور سننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آج ایک بڑی سیدہ جو ہے وہ بی بی پاک سیدہ طاہرہ کے عنوان سے ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا طریقہ کار، اس کے پڑھنے کا انداز، سننے کا انداز ذرا اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ جشن ہوتا ہے اور صفحہ اللہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں ابھی سامنے شادی کے پاس لنگر کر رہا تھا تو مومنین ملے ہیں، وہ کل کی مجلس کے کل کے جشن کے حوالے سے مجھے جملے سنا رہے تھے۔ اس کا مطلب اتنا پڑھا لکھا شہر ہے ماشاءاللہ کہ آپ باتوں کو یاد کرتے ہیں اور بہت چھوٹے نوکر سے آپ پیار کرتے ہیں۔ بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ آج جو اس پاک مجلس ادا کا میں نے عنوان جناب خدمت میں دیا کرنا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو اپنا عنوان بتاتا ہوں، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے اور آپ سننا چاہیں گے۔ آج ہم بی بی پاک سیدہ طاہرہ کے صدقے میں صرف یہ بتائیں گے کہ قرآن کیسا معجزہ ہے۔ بی بی پاک سیدہ طاہرہ کے عنوان سے مجلس ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سنگل مجلس ہو، پورا شہر سننے آیا ہو، چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے ہوں، تو ایسے لوگوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے علمی جواہر مومنین اور بچوں کی خدمت میں دیا کرنے چاہیے جو بندہ عام طور پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عام طور پہ ہمارا مطمئن نظر زیادہ لاگت یہ ہوتا ہے کہ زیادہ داد آئے، زیادہ نعرے لگیں، لیکن ایسی جو مجالس ہوتی ہے ان میں ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علمی مواد عطا کیا جائے۔ میں اسی عنوان پہ پہلا فقرہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور یہ فقرہ تقریباً 80% مومنین نے پہلے سنا ہوگا تاکہ پھر آپ کا ذہن میرے ساتھ مل جائے اور پھر وہ جملے ہدیہ کروں جو بہت کم بچوں نے سنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عنوان قرآن آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب میں پہلا فقرہ کہتا ہوں۔ میرے بادشاہ مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن میں ایک مومن کو دیکھ رہا ہوں جن کی داڑھی سفید ہے، وہ میرے ساتھ ایسا بول رہا ہے جیسے جوان ہے، اور جوان اور بچے بھی چپ ہیں۔ تو چھوٹے بیٹا آپ میرا ساتھ دیجیے، اگر بات آپ کو تو آپ ابھی سے ذرا بولنے کی عادی ہوتی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے اس بات کا کہ ممبر شہر میں ذرا سننے کا طریقہ تھوڑا اور ہے، آپ زیادہ غور سے سنتے ہیں اور زیادہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا بولیں گے۔ اگر بڑا عالم دین آپ کے سامنے پڑھے تو بے شک آپ خاموش رہے گی، اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر چھوٹا سا طالب علم حقیقت سے ذاکر ہو تو وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو تھوڑا سا آواز آپ کا ممبر تک آئے گا، میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جب علی کا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ ہے فرمان شیعوں کے مولا کا۔ اب میں آپ کے سامنے فرمان ہدیہ کرنے لگا ہوں شیعوں کے مولا کا۔ بیٹا یاد رکھیے، بیٹا شیعوں کا مولا علی ہے، بیٹا علی کا مولا مصطفیٰ ہے۔ بیٹا اس عقیدے کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، پھر کوئی بھی ملا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا جب آپ کا یہ عقیدہ بن جائے۔ بیٹا میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں آپ کو چھوٹے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں اس لیے میں بیٹا آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بیٹا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل خدا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ۔ بیٹا اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل بطول کے بابا ہے۔ بیٹا اس لیے ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور بیٹا علی ولی اللہ کا مطلب علی ولی اللہ کی قسم یہ ہے محمد اور خدا کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو مولا کا تیسرے بار آپ بچوں کے لیے پھر دوہراؤں بیٹا،
का अली फरमाता है जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहे कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। अब मेरे मौला अली के मौला फरमाते हैं जैसे बेटा ये छोटे बच्चों आपके बेटा ये मेरी गुफ्तगू बच्चों के लिए होती है, बड़े तो होते हैं आपके ये सब जानते हैं। पैगंबर आज़म सरकार फरमाते हैं कि जैसे जमीन वालों के लिए रात के वक्त आसमान पर सितारे चमकते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तिलावत मेरा जी चाहता है कि मैं लख मर्तबा आपको कहूँगा क्या बात है। जुमले जो मैं जुमले जो पढ़ रहा हूँ ये बिल्कुल तफसीर के जुमले हैं, इसमें कोई इजाफी नहीं है, और इसके बावजूद भी आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आपको सलामत रखें। जैसे आसमान वालों के लिए ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं, आसमान वालों के लिए वो जगह चमकती है जहाँ कुरान की तिलावत होती है। अब अगला अकीदे का जुमला है और मैं बिल्कुल रुमाल रख के पढ़ने लगा हूँ, उम्मीद है कि आप बोलेंगे जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पे सितारे चमकते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए ज़मीन पे वो घर चमकते हैं जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है। इसका मतलब है हुसैन के नाना असल में कायनात को बता रहे हैं हर वो जगह सितारे की तरह है जहाँ हुसैन की मजलिस जारी है। तो मेरे अजीजों मैंने अभी तक मैंने आपकी खिदमत में दो फरमान मासूमीन के पेश की, अब तीसरा फरमान, और तीसरा फरमान उस पाक सैयद बादशाह का है अलैहिस्सलाम का जिनके नामे नामी इसमें गिरामी की वजह से आपकी फिका मशहूर है। आपकी फिका का नाम क्या है? उस बादशाह का आप फरमान पढ़ने लगा हूँ मैं। मेरे बादशाह फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, ये फरमान जब मैंने पढ़ा था ना, यकीन कीजिए कि 13-14 साल मुताले के बाद मुझे मिला था, यानी आज से 12-13 साल पीछे जाऊँ तो ये फरमान मेरे लिए नहीं था। अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने एक तफसीर खोली, वो तफसीर थी यूँ समझिए कि तफसीर नूर के नाम से अपनी मशहूर है, और आगे मौसम कराती की, और ये तोहफा है तफसीर। अगर आपको मौका मिलता जरूर पढ़िए, उर्दू में अवेलेबल है, कमाल का। मासूम से पूछा गया मौला, बड़ी तवज्जो रखिएगा, और मेरा कुरान है, अब देखिए मैं कैसे घुमा के आपको ला रहा हूँ। मौला अल्लाह हमें बार बार कुरान में कहता है अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। क्या वो हमारी नमाज का मोहताज है? क्या उसे जरूरत है कि हम सारे उसे झुके रुकू में कभी सजदे में? क्या वो हमारे झुकने का मोहताज है? क्यों कहता है नमाज वाजिब है? यकीन जानिए आप में से कोई बंदा उठ के जाकर बने मुझे वहां बिठाइए, मैं बताऊं आपको दाद कैसे दी जाती है। जुमले में मासूम फरमाते हैं उस अल्लाह को इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, वो तो बेनियाज है, अल्लाहु समद, उसे किसी की एहतियाज की जरूरत नीड नहीं है। तो मौला फिर वो क्यों कहते? तवज्जो रखिएगा, इमाम फरमाया कोई उस अल्लाह को तेरे और मेरे सजदे की परवाह कहां जिसे अली झुकता है। आपको सलामत रखे मेरे भाइयों मेरे साथी का हाय बड़ी जी, खुदा आपको सलामत के दुआ फरमा रहे हैं। जिसे बतूल झुकती है, जिसे रसूल झुकता है, जिसे हसनैन करीमैन इमामैन शरीफैन रहीमैन करीमैन मासूमैन वो झुकते हैं, वो तेरे मेरे सिर का मोहताज है। अब मौजूद कुरान याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने अपने आप को भी वाह की थी और मैंने मेरे मुसन्निफ के लिए भी बहुत सारे दुआएं कलमात किया थे। इंशाल्लाह आप भी अपना मेहमान और नौकर समझ के मुझे दुआ देंगे। कहते मौला यही तो मैं कह रहा हूँ, जब अल्लाह गनी मुतलक है, अल्लाहु समद है, उसे किसी की जरूरत नहीं, तो मौला फिर वो हमें क्यों कहता है अकीमुस्सलाह? और ये 51 मरतबा है, 51 मरतबा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज। वजह क्या है? अल्लाह करे सारे बोल पड़े, थोड़ा मुश्किल जुमला है। सादिक इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने मखलूक पर नमाज को इसलिए वाजिब किया कि वो मखलूक के मुंह से कुरान सुनना चाहता है। बिम्बर जिंदाबाद। आपके क्या कहना है? खुदा की कसम ये आप ही का काम है कि ऐसी गुफ्तगू आप सुनते हैं, बड़ी बात है। मौला आपको सलामत रखे। जितना
اونچا آپ کا شہر ہے اتنی اونچی آپ کی معرفت ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو نماز اس لیے واجب ہے کہ اللہ مخلوق کے منہ سے قرآن سننا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نماز میں قرآن تو ہے، اور سورہ فاتحہ جس میں نہ ہو وہ نماز میں نے بڑا سرچ کی تھی کہ وجہ کیا ہے، باقی قرآن ہے وجہ کیا ہے سورہ فاتحہ ہی کیوں. پھر جب میں نے ڈھونڈا تو وہ نکلا اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ آسان مصطفیٰ کی زبان میں یہ ہے، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مدد کیسی؟ ہمیں علی کا راہ دکھا دے. سب کے جاما خدا آپ کو سلامت رکھے. کوئی بڑی مہربانی پیپر والوں اور جو پیپر کے چھوٹے بچے ہیں یا جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بڑے کیوں بول رہے ہیں؟ چونکہ اسی آیت کو سنا کر تو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم مدد کیا نشرت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت فقط خدا کی، مدد فقط خدا کی. قرآن کہتا ہے شیعہ بڑے جی کافر ہیں جی یہ عالم اللہ کے بندو، ایاک نعبد اسی کی عبادت ہے و ایاک نستعین مدد اسی کی ہے. اس کے بعد خدا خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ کی مدد کا نام ہی علی کا راستہ ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے آپ کو سمجھ رکھیں اہدنا الصراط المستقیم میرا مولا علی ہے. اور حضرت ابو بکر راوی ہے اس روایت کے، مشہور آپ نے سنی ہوگی، میں دہرانے گا، آپ نے سنا ہے. اچھا آگے بڑھیے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 3 فرمان پیش کیے، بادشاہ علی کا، بادشاہ نبی کا اور امام صادق کا. 3 فرمان ہو گئے. اب چوتھا فرمان یہ پھر ایک بطول کے بابا کا ہے. اور اس فرمان سے پہلے میرا جی چاہتا آپ کو پتہ نا، جب ہم تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پار پانا ہے، کسی بات کو وزن دینا. وزن نہیں کہ جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ میں تقریباً اگر خدا نہ خاصہ غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، تقریباً 15-16 سال سے میں نے علوم القرآن پر، قرآن کی فضائل پر میں نے شیعہ مقرر کو پڑھا ہے، میں نے اہل سنت کو پڑھا ہے، میں نے اہل حدیث کو پڑھا ہے. 15-16 سالوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، اسی قرآن کے 30 پاروں کی قسم، قرآن کی جتنی بھی شان میں نے پڑھی ہے وہ ایک طرف اور ایک جملہ ساری شان سے باری ایک طرف. اور پیپر والوں اور کتنا بڑا ہوگا قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے. کتنا عظیم ہوگا بھائی جان قرآن. بھائی مالک آپ کو سلام یا علی انت قرآن الناطق. یہاں سے اندازہ کیجیے کہ قرآن کوئی لائٹ سی کتاب ہے. اور اگر میرے مومنین میرا ساتھ دیں تو میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً پھر بڑی داد دیں. بھائی اللہ کے بندو قرآن سے اگر کوئی کلام افضل ہوتا تو منہ کی نیزہ پہ حسین وہ پڑھتا. کتنا زندہ باد ہے ان ماؤں کو سلام جو ایسے مار فکر حلالی بچے پیدا کرتا. اور آپ کو سلامت رکھیں. اچھا 4 فرمان میں نے آپ کی خدمت کی. ابھی تک کوئی ایک لفظ غیر ملتوی کا نہیں تھا. یہ معصومین کا کلام ہے اور میری اوقات بھی کیا ہے کہ میں اپنے نام لے کے کوئی خدا نہ خاصہ بات کروں. میری اوقات کیا ہے؟ میں تو آپ کی جوتی سے نکلنے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. چونکہ ہم تو پتہ نہیں ایک کے سلام میں یہاں آتے ہیں، آپ ہیں جو بے لوث آ رہے ہیں. آپ کی شان ہم سے زیادہ ہے بھائی، یاد رکھیے. یہ میں خوشامد نہیں کر رہا، سچ بیان کر رہا ہوں. چونکہ یہاں آپ آتے ہیں تو آپ بے لوث آتے ہیں. ہم تو دنیا کا اتنا سارا نظرانہ لے کے چلے جائیں گے. آپ ہیں جو بطول کی دعا بن کے آتے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ مجھ جیسے گناہگار 2 ٹکے کے بندے کو بھی دعا کیجیے گا. 4 فرمان میں پڑھے اور 5 سن لیجیے. قرآن کتنا افضل ہے، کتنی بڑی کتاب ہے. شیعو تمہارا کلمہ قرآن کے مطابق، تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق، تمہاری اذان قرآن کے مطابق، اور شیعو تمہارا ایمان قرآن کے مطابق. ٹھیک ہے اوکے سائڈ پہ ہو جاؤ. سنیو تمہارا عقیدہ جی قرآن کے مطابق، تمہارا کلمہ جی قرآن کے ساتھ، تمہاری اذان جی قرآن کے ساتھ. جی مہربانی سائڈ پہ ہو جائے. اہل حدیث بھائی وہابیو تمہارا ایمان قرآن کے ساتھ، تمہارا کلمہ جی قرآن کے ساتھ ہے، تمہاری اذان جی قرآن کے ساتھ ہے، تمہارا ایمان جی قرآن کے ساتھ ہے. میں کہوں گا شیعہ سنی وہابی تینوں بھائیوں اور 72 فرقے والوں، میں تمہارے سر پہ اسی قرآن کو رکھ کے پوچھتا ہوں، تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ تم سب قرآن کے ساتھ ہو، اور کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ وہ کس کا ساتھ ہے؟
दुआओं का सदका है। आपकी सब भी दवा है। कुरान से पूछा, आपको पता ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी का मशहूर फरमान है, कुरान नबी के साथ और अली। इन्होंने जो दाद दी है तो मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा कहूँ कि आप लोग ये तो सब समझते हैं ना, ये बारीकियाँ भी समझते हैं ना, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, इन्होंने तो उलमा को सुना ना बेटा। मैं चूंकि बच्चों का ज़ाकिर हूँ बेटा, आपको समझा रहा हूँ बेटा। हमारे एक केबल पे एक चैनल चलता है, मदनी चैनल है, तो उस पे बेटा उस पे अज़ान के बाद 2 हदीसें आती हैं। पहली हदीस ये आती है, मतलब पता नहीं कुरान पर कुरान जला नहीं, कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पे लानत करता जाता है। ये कहना लगा हुआ है, ये हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। और अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, नबी ने कहा कि कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है, दिल में उतरता नहीं है। तो ऐ कुरान अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है? अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है? अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है? कुरान के बारे क्या तूने मोहम्मद मुस्तफा का फरमान सुना? कुरान नबी के साथ है, अरे कुरान के साथ है। अब जो भी मुझे पढ़ने के लिए मुंह में डालता है, मैं अंदर झांक के देखता हूँ, अगर अंदर अली है तो उतर जाता हूँ, मैं लानत करके सलामत रखे। क्या करें मौला आपको सलामत है, आपको सलामत है। बेटा बेटा मेरे साथ है ना, बेटा मेरी बातों को समझ आ रही है आपको? अल्लाह आपको सलामत है, खुदा आपकी 100 साल की करे, आप हमारा कल हैं जनाब सईदा, आपको सलामत है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुरान एक मौजज़ा है। अच्छा, अल्फाज में मौजूदा है, मानी में मौजूदा है, फसाहत में मौजूदा है, बलागत में मौजूदा है, बदी में मौजूदा है, ये तफसीर में मौजूदा है, नेक्स्ट पेशेन गोई में मौजूदा है, पिछली बातों में मौजूदा है। कुरान जानता है आदम से पहले क्या था, कुरान जानता है क़यामत के बाद। खुदा की कसम, ऐसा लतीफ, ऐसा इल्म का मिसाल देता हूँ। अच्छा देखिए, अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो वो मुझ जैसे 2% की जुबान में होगी, कुरान में नहीं है। मैं एक बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है वो हदिया करने लगा हूँ, अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। जो मेरे अभी हादसे में वो ये है, ऐसा मौजूदा है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, मसलन लफ्ज़ दुनिया कुरान में 115 मरतबा है, दुनिया के मुकाबले में आखिरत वो भी कुरान में 115 मरतबा है। और अब मैं काम शायद इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नौजवान ने मोबाइल ऑन किए हुए हैं और मेरी बात पर बात हो रही है ना। अच्छा, लफ्ज़ जिंदगी कुरान में 71 मरतबा है, जिंदगी के मुकाबले में मौत है वो भी कुरान में 71 मरतबा है। लफ्ज़ शयातीन कुरान में 68 मरतबा है, शयातीन के मुकाबले में मलाइक का लफ्ज़ कुरान में 68 मरतबा है। लफ्ज़ इबलीस कुरान में 11 मरतबा है, और इबलीस से पनाह का लफ्ज़ भी कुरान में 11 मरतबा है। लफ्ज़ इल्म और इरफान कुरान में 811 मरतबा है, और लफ्ज़ ईमान भी कुरान में 811 मरतबा है। भाईजान 7 आसमान है, लफ्ज़ आसमान कुरान में 7 मरतबा है। भाईजान साल में 365 दिन है, लफ्ज़ दिन यानी यौम कुरान में 365 मरतबा है। भाईजान एक साल में 12 महीने हैं, लफ्ज़ महीना यानी शाह कुरान में 12 मरतबा है। भाईजान दिन और रात में 24 घंटे हैं, लफ्ज़ घंटा यानी सात कुरान में 24 मरतबा है। भाईजान लफ्ज़ फिरका कुरान में पहले से 72 मरतबा है। क्या कहने आपके मौला आपके सामने होंगे, खुदा शनी आपके हाथ को सलामत होंगे। बाबूजी आपकी नीयत है, ये बानियान की नीयत है, जो जाकिर पढ़ रहे और हलाल जादे कमाल का सुन रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। भाईजान 51 रकअत नमाज है, मोमिन की अलामत तहज्जुद समेत। 2 बदल बेशक कहा, अगर 8:30 के घर पे चले जाए तो अब भी अलामत यही है। अंकल जी 51 इकामत जरा मुझे मुश्किल, मैं देसी बता बड़ा बंदा इसलिए मैं 51 कहता हूँ। 51 रकअत नमाज मोमिन की अलामत है, मोमिनो खुश हो जाओ, इसीलिए लफ्ज़ नमाज कुरान में 51 मरतबा है। मेरे अजीजों 5 नमाज़ें पुत्र वाजिब हैं यौमिया दिन में, कितनी बेटा? और पुत्र 5 वाजिब नमाजों की कुल रकात हैं 17, मैं 17 नहीं कहता 17, और पुत्र 17 रकातों में कुल सजदे हैं 34, लफ्ज़ सजदा कुरान में 34 मरतबा है।
अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। अंकल जी, शादी लफ्ज़ सजदा कुरान में 34 मरतबा है, 72 फिरके भी होने हैं। लफ्ज़ फिरका कुरान में 72 मरतबा पहले मौजूद है। मुझे नहीं पता इतनी मुश्किल तहकीक आप कैसे करेंगे। मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, आपको मुबारक हो। लफ्ज़ मसीह भी कुरान में 12 है, इमाम भी 12 है, शिया भी 12 है। बाबा जी मोमिन दुआएं दे रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं यूं दोनों हाथों से रूप पेश करूं, क्योंकि ऐसी बातें आम मजबा थोड़ी सुनता। ये आपका काम है भाई। आम मजबा सुनते हैं जी, राहिब सुनाइए, पुत्र सुनाइए, कदीर सुनाइए, कैबर सुनाइए। ये आपका काम है जी। इतना मुश्किल मौजूद, इतना अच्छा सुन रहे हैं। मौला आपकी मार्फत में मजीद इजाफा फरमाए। अच्छा, तो मसीह 12, इमाम 12, लफ्ज़ शिया भी 12। अब जरा मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं जरा अपनी सत्ता से गिर के बात करने लगा हूं, मुझे माफ कीजिए। पहले मैंने आपसे माफी मांगी। क्या शिया कहते हैं कि 12 भी कुरान में, 4 भी कुरान में है। अल्लाह मैंने आपसे पहले माफी मांगी थी कि 4 भी कुरान में। मैं कहा वो कौन से? अच्छा है कुल। छोटे बेटा समझे, 4 कुल। आपको 4 कुल नजर आ रहा है ना, लेकिन वो समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेटा कहते हैं 5 कुरान में तो क्या हुआ भाई मुबादा में, 12 कुरान में क्या हुआ भाई वो जनाब मूसा के चश्मे, 14 कुरान में तो क्या हुआ, 4 तो कुरान में। अच्छा कहाँ अजीजों याद रखिए, लफ्ज़ कुल काफ 2 तो वाला कुल, कुल एक है कुल, एक है कुल, यानी कुल टोटल और कुल तो कह गए यू से कुल। लफ्ज़ कुल कुरान में 332 मरतबा है। और मेरे नौजवान भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है, शायद कोई भाई लाइव भी चला रहे होंगे। तो लफ्ज़ कुल कुरान में मोजम मुफारस मुल्ला अब्दुल फवाद बाकी ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिन्होंने इसी चीज़ पे कुरान की पूरी तफसीर लिखी है कि फलाना कितनी मरतबा है, फलाना कितनी मरतबा है, फलाना कितनी मरतबा है। उसमें लिखा है लफ्ज़ कुल 332 मरतबा है। अब आइए उस बात पर जो मुल्ला शरारत कर रहा है वो क्या। अजीजों सूरह कुल, छोटे बेटे क्या सूरह बेटा, सूरह कुल नौजवान उस सूरत को कहते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फौरन बाद लफ्ज़ कुल से शुरू हो। फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये हैं वो 4 कुल, जो 4 कुल। हत्ता कि यहाँ तक इस मुंडे का बुखार नहीं लेना पिया, इसका बुखार नहीं उतर रहा, 4 कुल पढ़ के मौलवी साहब को 2 से भी आराम आ जाता है। कुरान है ना, वाइटल कुरान है ना, वो तो एक भी काम करते हैं ना, यानी 4 ये इतने अंकल जी इतने 4 मशहूर हुए कि खुदा की कसम मैंने कई मरतबा देखा। हमारा काम है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के बारे में जाते हैं, तो आपको पता है कि हमारा काम ड्यूटी है मेडिस करना। तो मैंने कई मरतबा शादी देखा, तीन से शादी हाफिज साहब, मैंने कई मरतबा देखा चाचा जी कि शिया मिंबर पे जो कपड़ा है ना उसमें भी 4 है, ऊपर 4 को लिखे हुए भाई। यानी ऐसा ये लफ्ज़ 4 मुल्ला की शरारत ऐसी सरायत कर गया कि शिया मिंबर पे ही है, शिया इमाम पर सीने बनी हुई है। तो मेरे को याद रखिए 4 कुल जो है वो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए हैं, और इतनी दाद दीजिए काफी है, इसके बाद बड़ी दाद आ जाएगी। याद रखिए मुझे 4 कुल की कसम कुल भी 5 है। कुल कितने हैं? अब हक बनता ना, आप मेरा गिरे बार करके मुझे पूछे वो कितने में। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पहले इसका नाम सुन लीजिए, इसका नंबर सुन लीजिए, फिर मैं आपको आयत पढ़ सुनाता हूँ, ठीक है। इसका मेरा ख्याल है हल्की सी दाद तो नंबर पे आ जानी है। 114 सूरतों में इसका नंबर है 72। बेटा अपने हाथों से ऐसा इशारा करूंगा जो है आकवर्ड, मिंबर के लायक तो नहीं है, लेकिन बच्चों को सुनाने के लिए बेटा कर रहा हूं, मैं बड़ों से माफी मांगता हूं। और बेटा 72 नंबर सूरत का नाम है सूरह जिन। क्या बेटा मैंने बेटा इसलिए ऐसे किया कि आपको कभी छोटे बच्चे का जो दिल होता है वो पानी का होता है। अब आप नोट कर लेंगे। अच्छा सूरह जिन नाम है, सूरह जिन। नौजवान भाइयों अल्लाह आपको सलामत रखे, चांद से सोने चेहरे सलामत रहे।
नाम है सूरह जिन, नंबर है 72 72। अल्लाह आपको समझ के अब वो आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुन मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआन अजबा। ऐ मेरे हबीब काफिरों को बता दे, मैं मोहम्मद कुरान पढ़ रहा था, करीब से जिन गुजर रहे थे, सारे मुसलमान हो गए। हबीब इनको बता दे, कौन बता दे, मैं मोहम्मद कुरान पढ़ रहा था, काफिर जिन्होंने सुना वो सारे मुसलमान हो गए। जो हमारे मासूम है ना, यानी जो शियों के पीर हैं, या यूं समझिए कि शिया उनको पीर मानते हैं जो जिन्नों को भी समझा सकते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, नाम के बगैर आप समझ जाएंगे। किसी ने मेरे मौला अली के सामने कहा था कि मैं हूं खलीफा, तो बादशाह ने कहा था कि तुमने कभी जिन देखा? भाई तो लतीफा नहीं है, लतीफा नहीं, मैं कहीं भी बात का ज़ामिन हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइम भी जा रहा है। बादशाह ने कहा तूने कभी खलीफा, तूने कभी जिन देखा? उन्होंने कहा नहीं, अगला फिक्र नहीं है। और ये फिक्र अली ही कह सकते थे। अली फरमाया दो बंदे बोलो मैं राजी हूँ, क्योंकि जुमला मुश्किल है, ज़ाकिरी टाइम में शायद ऐसा जुमला ना हो, मुझे वो बनास वार के नाम पढ़ना आ रहा हो, क्योंकि जुमला मौला अली का है, मेरी ज़ुबान का कहा, लेकिन कोशिश करता हूँ। अली फरमाया अजीब बात है, तू जिनको देख ही नहीं सकता उनकी हिदायत कैसे करेगा? क्या कहते मौला आपको सलामत रखे, बाखिरत को जिंदा मेरे साथ ले जाऊं। मेरे मौला अली के नाम का बुलंद नारा, ऊंचा नारा हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, इसका मतलब है मेरे पैगंबर ने जिनों को देखा और उनको मुसलमान किया, उनको कुछ सुनाया भी, उनको देखा भी, है ना? ऐसा है ना? शिया सुन्नी वापी तीनों भाइयों ने लिखा है कि साथ में अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी थे। ये बड़ा सुरीला सहाबी है, बहुत सुरीला सहाबी। ये इतना सुरीला सहाबी था, शिया सुन्नी लिखते हैं कि इसकी तिलावत को रसूलुल्लाह पसंद करते थे, यानी जिसके दिल पे कुरान उतरा है। और उस सहाबी को सरकार ने इधर लिखा है, बेटा कोई काम नहीं बेटा, अच्छा बैठिए, इस अपने मुस्तशा से सरकार ने यूं तारा बनाया, तारा खींचा, और तारा खींचने के बाद कहा इब्न मसूद इसके सेंटर में बैठ जा, लाखों करोड़ों अरबों कायनात के जिन भी आ जाए तेरी जूती को भी नहीं हिला सकेंगे, क्योंकि निशान मोहम्मद ने लगाया। ये समझ आएगा ना आपको? इसका मतलब, और आपने वो भी सुना हुआ है कि जब हल बिन नासर यांसुरना का किसी पाक सैयद ने इस्तिगासा दिया था, तो जिन्हों की एक जमात आई थी, मौला हुक्म करे, फरमाया नहीं, फरमाया। अच्छा, आपको पता है मेरे मौला सच के दवा एक करबला के मैदान में मेरे मौला जो था शरीफ हल बिन नासर, शायद मैं जरा डिफरेंट रूप में पढ़ रहा हूँ, आज मैं वैसे पढ़ रहा हूँ जो मैं हूँ। थोड़ा जो पहले स्टाइल होता है वो नहीं है, आज मैं आपके मुताबिक पढ़ रहा हूँ, और यही मेरा रूप यही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा तवज्जो रखिएगा। और जब मेरे मौला ने कहा था ना हल मिन नासिर यंसुरना, तो जिन्नात की जमात आई थी, और उन्होंने आके कहा था ये मेरे मौला ने कोई सचमुच उस वक्त हेल्प लेने के लिए नहीं कहा था, ये हिदायत के लिए था। कोई ऐसा नहीं था नऊज़ बिल्लाह कि मेरे मौला चाह रहे थे कि कोई आया और मुझे शिमर से बचा ले, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे मौला से कह देते तो आसमान जमीन पे गिर पड़ता। ये कोई वजह और थी, और अल्लाह करे इमाम हुसैन का सदका हर हलाली समझे और हर हलाली बोल पड़े। जब जिन्होंने कहा ना मौला आपने हल मिन नासिर तो कहा क्या हम आपकी मदद करें, फरमाया खामोश, जो मेरे बाबा की तलवार से डरे हो मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए। ये जुमला हुसैन का ना हो, मेरा मतलब माफ है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी थोड़े टाइम में ज्यादा फिक्र आपके कर दिया करूँ। अच्छा, इसका मतलब है मेरे मौला हुसैन ने जिन्नात को रिजेक्ट किया, मेरे मौला नबी ने काफिर जिन्नात को कलिमा पढ़ाया। क्या कोई ऐसा भी शिया माँ का पुत्र बैठा है जिसे पता ना हो कि कौन सा कुआं था और क्या हुआ था? आप भी कह रहा हूँ बेटा, एक बेर महमूदा के नाम से कुआं मशहूर है बेटा, अरबी में कुएं कहते हैं बेर, हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं खूह, क्या कहते हैं पुत्र, और उर्दू में कुआं।
ठीक है। और अरबी में कहता है बेर, माँ और बेर कुएं का पानी। ये जो फिका है ना, फिका जाकर उसमें उसके लिए काम है कि उससे कुएं से पानी निकाल के कैसे कुएं को अगर नजर तो कैसे पाक करना है और उससे किसी चीज़ को कैसे पाक करना है, इसलिए माँ और बेर कुएं का पानी। अच्छा, उस कुएं में जिन्नात का कमरा था। सहाबा किराम करीब से गुजर रहे थे और कुछ सहाबा ने कहा भाईजान भाईजान, कुछ सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह प्यास बड़ी लगी है और दूर दूर तक पानी नहीं है। सरकार ने फरमाया एक जगह है, कुआं है, आप जाइए। कुछ मजबूरियां मेंबर किया ना जी, अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपकी जवाब तो कहा कि आप जाइए और पानी लाइए। अच्छा, वो जैसे गए उन्होंने ढोल फेंका, ढोल गायब हो गया। वो कैसे वापस आए? जैसे आते थे, ठीक है, वो खैर वापस आए। अच्छा, एक जुमला है, मैं चाहूंगा पंजाबी का जुमला आपको जरूर सुनाऊं, पहले उसकी उर्दू सुन लीजिए। कुएं में फेंका, भाई क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या है। बेटा ये हो गया इसका उर्दू। अब बेटा मैं तो देसी बना हूँ, झटका बना हूँ, मैं अनपढ़ चाहे पेड़ू बना हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ और ये बुजुर्ग बोल पड़ेंगे। पैगंबर पूछा की होया जी? उन्होंने आख्या सरकार विच कुछ भी नहीं ते विच खोरे की। पता आपको समझ मौला आपको सलामत रखे, यानी नजर कुछ नहीं आता ना तो पता नहीं क्या। अच्छा, सरकार का यानी जी सही रखना, पानी लाइए। अच्छा बादशाह सलमान आप भी साथ जाइए। जनाब सलमान मेरे मौला के पीछे पीछे, हालांकि सलमान 400 साल के हैं लेकिन अली के पीछे हैं। हम उसे आप भी मानते ही उसे हैं जो अली के पीछे। याद रखिए कि हमारा फायदा बढ़िया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, दो डोल थे भाई, मैं दो डोल थे, एक बादशाह ने फेंका वो डोल गायब हो गया। जनाब सलमान और ले आओ यार, दो ही थे। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरे मौलाना ने कहा होगा कि हमने दुकान फटा ली है डोलों की। सलमान पीछे हटा। सलमान फारसी कहते हैं कि तलवार निकाल के ना यूं आवाज आई और मेरे मौला ने अल्लाह हुक्म कह के कुएं में कूद गए। जनाब सलमान कहते हैं फिर अंदर से ऐसी आवाजें आती थी, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। कभी बिजली, कभी आग और कभी खून के छींटे। ये जनाब सलमान कह रहे हैं, मैं ऊपर से देख रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। कहता है कुछ देर के बाद जब मेरे मौला अली बाहर आए तो मैंने कदम चुके कहा बादशाह शाह जी की बने हैं। तो सरकार ने फरमाया 70,000 को कत्ल किया है, 70,000 को कैद किया है। मेरे मुर्शिद अली फरमा रहे थे मैंने 70,000 को फिन्नार किया है और 70,000 को कैद, यानी एक छठे के मुझे फरमाया वास्ते पाला पसंद छड़ दे सदा सदका, छड़ दे हुसैन का सदका, छड़ दे हसन के जावा उम्माई के वास्ते दे। अब पैगंबर आजम की खिदमत में मेरे मौला अली ने वो 70,000 आके यूं फेंके। उन्होंने क्या बड़े शाह जी मेहरबानी करो, जो आते हो करने हैं, छोटे शहर को बचा लो। उन्होंने कलमा पढ़ा तो बच गए। और मेरा कहानी सुनाने का मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ हाथी वो है जो जिनों को समझाए, जिन्हों आप जिन जबरदन वो उम्मत का ईमान है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत है। अच्छा, अब मैं इनसे एक मशवरा चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे सरदार बैठे हैं, सारे मेजबान हैं, सरदार हैं हमारे, मैं आपका खातिब हूँ सबका। मुझे एक मशवरा चाहिए। मशवरा यह है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी गुफ्तगू है ना वो अब शुरू हुई है। अब आप मुझे बताइए कि मजीद 5-7 मिनट और पढ़े या थोड़ा और पढ़ क्या 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 थोड़ा पढ़े, क्योंकि जो लेट होने से बावजूद जो होती है ना, ठीक है, वाली काम को सामने। अच्छा, तुम क्या कहते हैं? वो कहते हैं याद है मेरा फिक्रा चार भी गुलाम तंग नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपके मिजाज पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो नौकर के लिए हाजिर है। तुम कहते हैं कि चार, हम कहते नहीं, कुरान में कुल 4 है, कुल कितने हैं? कुल 5 हैं और कुल 5 हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कुरान के पारे कुल कितने हैं? अच्छा, मैं तो मेंबर को ये कह दूं कि 30 ऐसे लिखा जाता है 3 0 3 0 3 0, तो क्या परेशान होता है? और 30 कैसे बनता है? 3 0 तो 30 बनता है। शादी 30 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 तो क्या बंदा 2 मरतबा बता दे कि 30 ऐसे बनता है 3 0 3 0 3 0, तो कहेंगे नहीं ये पता नहीं क्या क्या है भाई। क्या आपकी निगाह में 7 के पीछे 0 तो 30 बनता है?
तो भाई कुरान 30 पारे हैं और 30 बनता है 3 जीरो के साथ। जब तक 3 के साथ जीरो ना लगे 30 नहीं बनता। मेरा कसूर है? तो भाई सबके जवाब तो क्या आपको पता है ये जो 30 है ये पारे 30 क्यों है, 29 क्यों नहीं, 31 क्यों नहीं? तो मेरे वीडियोस की वजह ये है कि कुरान आया है बशरियत की राह। मुझे नहीं पता मेंबर वाला ऊंची जगह वाला कितनी ऊंची दाद देंगे, मुझे नहीं पता, थक गए या अभी मेरे साथ हैं। 30 पारे बनते हैं 3 मरतबा 10 गिनने से, चूंकि कुरान आया है बशरियत की हिदायत के लिए और भाईजान बशर की जिंदगी 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए, कुरान के दरमियानी 10 पारे जवानी सही करने के लिए, कुरान के आखिरी 10 पारे बुढ़ापा सही करने के लिए। मेंबर वालों कुरान की कसम 3 को सही करने ही तो कुरान आया था। आपको सलाम सबके नाम भाई मेरे साथ है बेटा बेटा पाइंटर पाप की कसम में 3 को सही करने कुरान आया था। कुरान आया ही इसलिए था कि बचपन सही हो, कुरान आया ही इसलिए था कि जवानी सही हो, कुरान आया ही इसलिए था कि बुढ़ापा सही हो। इन 3 को सही करने कुरान आया था और ये जिंदगी भर सही ना हो सके इसमें कुरान की कसूर थोड़ी है, पर इन्हीं को सही करने कुरान आया था। अब आपने पूछना है ना कुरान कैसा है, तो कुरान शादी कुरान के पहले 10 पारे भी पाक, कुरान के दरमियानी 10 पारे भी पाक, कुरान के आखिरी 10 पारे भी पाक। अगर आप थोड़ा बोलेंगे फिर ज्यादा मुझे को मजबूरन मौलवियत यहाँ रख के बुलंद करना पड़ेगा। मेहरबानी मेरे साथ दीजिए, कुरान के पहले 10 पारे भी पाक, कुरान के दरमियानी 10 पारे भी पाक, कुरान के आखिरी 10 पारे पाक। और साढ़े अथीना पे अब वारिस से कुरान भी वो होगा जिसका बचपन भी पाक हो। कोई मालिक का जमाना आपके हाथ से सारे सारे पूरी कुवत से भाई का जवाब दीजिए। भाई कुरान के पहले 10 पारे पाक, कुरान के दरमियानी 10 पारे पाक, कुरान के सब आखिरी 10 पारे पाक। अब वारिस से कुरान भी वो होगा जिसका बचपन भी पाक हो, जिसकी जवानी भी पाक हो, जिसका चाचा जी बुढ़ापा भी पाक हो। चाचा जी खुदा की कसम मेरा जी चाहता है कि अब जितना पत्थर हो मैं उठा के माथा इसमें मारूं और खून निकालूं अगर शीजा माँ का पुत्र हो के कोई चुप बैठा रहा। कुरान के पहले 10 पारे पाक, दरमियानी 10 पारे पाक, आखिरी 10 पारे पाक। इसका मतलब वारिस कुरान वो होगा जिसका बचपन पाक हो, जिसकी जवानी पाक हो, जिसका बुढ़ापा पाक हो। और जिसे कल 13 रजब याद है वो तो बोले और बचपन ऐसा पाक आए तो काबा में। वो कहते हैं कि मेंबर का मजमा जो है ना वो बड़ा खुश मजमा है, यानी बोलता नहीं है। तो मैंने कहा मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। हाँ अगर जाकिर बुलाने वाला हो तो ये बोलते हैं, और वो जो आप नहीं ना बोलते आम मुझ जैसे जाकिर साहब नहीं बोलते, इसका मतलब ये है कि आप घमंडी हैं या आप खबर वाले हैं ना। उसकी वजह है क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी जाकिर मोए नहीं। आप कुछ चाहते हैं कि कुछ कहो तो सही, कोई ऐसी बात भी तो बोले, क्योंकि मेरे जैसा जितने भी जाकिर हैं ना 50, 60, 70% उनकी पढ़ाई आपको पहले से आती है। पढ़ना ऐसा नहीं, आप बखील नहीं, अली वाले बखील नहीं होते। आप बड़ा कमाल का मजमा सिर्फ ये है कि जरा बात आपके अगर मिजाज के मुताबिक उदा बोलेंगे ना, और अगर आपकी मार्फत नीचे पर सतर बात होगा क्या अब ये कहेंगे ऐसा नहीं कि नौजवान कंजूस है या बखील है। अली वाला ना कंजूस होता है ना बखील होता है। अब मैं अच्छा मुझसे पूछे जाएगा कोई तो भाई इतना अच्छा मजा तो आ रहा है कुरान और अहले बैत का, दुनिया में ये कौन सी दूध बातें कर रहा है कि इधर उधर बोलते कहते हैं। आप खुद को भी छोड़ हमें भी छोड़, वही डगर पे कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा आप थक गए हैं, इस फिक्रे के बाद डिसाइड होगा 10-15 मिनट और पढ़ूं या दोनों हाथ माथे में रखूं और जाने या ईशा के मुझे घंटा कहा था वो पूरा हो गया, ऐसे हाथ लगे ऐसे उतना एंड निकल जा, ये आपकी दाद बताएगी। और बचपन ऐसा आए तो काबा में, जवानी ऐसी बात शादी हो तो ज़हरा से।
लगाया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी बाबा जी मौला बाबा जी मैं यूँ झूम रहा था, क्योंकि ज़िक्र अली में झूमना बड़ी इबादत है, मैं झूम रहा था। मैं आप मुझसे पूछिए यूँ क्यों कर रहा था, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था कि अभी फितना तो आगे है और पता नहीं ये हलाल ज़ादे बर्दाश्त कैसे करेंगे। और आए तो काबा में, जवानी ऐसी पाक, शादी हो तो ज़हरा से, बुढ़ापा ऐसा पाक, शहादत हो तो मस्जिद में। अब उस अली का मुकाबला वो कैसे करे जिसे सगा बेटा कहे मुझे कोड़े वो मारे। किसने अली हक, 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 मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत, आपके शहीद आपको सलामत। बाबा जी तकरीबन 11 हो गए, तकरीबन आधे मिनट का फर्क होगा। तो बाबा जी आ रहे हैं, पीर सच्चा जी पहुंचे, मखदूम साहब बैठे हुए हैं, यानी कि मेरी आवाज आ रही होता है इंशाल्लाह, तो इसका मतलब 5-7 मिनट तक तशरीफ ले आएंगे ना। ठीक है बाबा जी, ठीक है, मेरी जो चना रहा है गरीब के हाथों को सलामत रक्षा मैं थोड़ा सा और पढ़ लें। मैं इसी बात की कोशिश करता हूँ वेट करने की। अभी जो केसर रटी हुई थी ना, अभी वो है बड़ी, मैं अपना कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और हदिया हो जाए और मैं आपको सलाम करूँ। मौला पाक आपको सलामत रखे। मेरी औकात से ज्यादा बड़ी दुआ और आपकी दाद है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जो सुनिए, मैं जो चाह रहा था वो हो गया है। क्या हुआ कि मेरे पीरों मुर्शिद आ रहे हैं, सैयद आ रहे हैं, सैयदा की आमद पे बुलंद तरीन सलावत पढ़ना। बाबा जी इजाजत 2 मिनट मालिक आपको सलामत। तो सरकार मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2-4 मिनट और करता हूँ। शायद ने मुझे 15 मिनट कहा है, लेकिन चूंकि सैयदा आ गए हैं, अब मैं 15 मिनट से कम हाफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि शायद जी ठीक है ना, फिर 8 होनी है, ठीक है। अच्छा मालिक आपको सलामत रखे। कुरान तय्यब ताहिर, वारिस भी वैसा होना चाहिए जैसा विरसा वैसा वारिस। हम भंग पी के अली को बिला फसल नहीं कहते, हमें पता है रसूलुल्लाह के बाद कुरान की तरह पाक सिर्फ अली है, रसूलुल्लाह के बाद कुरान की तरह पाक सिर्फ अली है, और रसूलुल्लाह के बाद सारे बोलेगा रसूलुल्लाह के बाद कुरान की तरह पाक बस अली है। और अगर शिया काफिरों पे यकीन ना है तो अपने घर की किताबें देख, पैगंबर को हुक्म हुआ था मोहम्मद सबके दरवाजे बंद कर, मस्जिद में 2 खुलेंगे जो कुरान की तरह पाक है, एक नबी का दूसरा मालिक आपको नौजवान भाइयों, मैं क्या कह रहा था, जैसा विरसा पाक वैसा वारिस पाक। ऐसा थोड़ी है कि कुरान अच्छा मुझे बताइए, नौज़ बिल्लाह, हालांकि ये सवाल बनता नहीं है, मैं माफी मांगू शाह जी से भी आपसे भी, मुझे ये बताइए क्या खुदा अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, क्या कुरान पे कभी ऐसा जमाना रहा कि वो एक लम्हे के लिए पलीत रहा हो? अल्लाह मुझे माफ करे, खुदा मुझे माफ करे, ये लफ्ज कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरी है। इसका मतलब है कुरान जब से है पाक है ना, तो वारिस ऐसा हो ही नहीं सकता जो जिंदगी के 40 साल पलीत रहा हो। मैं माफी चाहता हूँ, शादी माफी चाहता हूँ। भाई मालिक आपको सलामत रखे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर तो ये लफ्ज दाया हुआ जो भी कहने लगा, बाबा जी सैयद आका है, लेकिन हमारा इलाका एक है और वैसे मुझसे एज में छोटे हैं, लेकिन मैं अपने बाप की तरह इज्जत करता हूँ क्योंकि सैयद है। तो मैं सैयद ज़ादे के सामने कह रहा हूँ, शाह जी मैं आपके गवाह बना कर रहा हूँ, मुझे आपकी जाति की कसम है, मैं सच कह रहा हूँ, बनावट नहीं कह रहा हूँ। आइंदा अगर आया भी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बस ड्यूटी करके चला जाऊंगा, अंदर से वो खिंच भी बढ़ और मोहब्बत कत्ल हो जाएगी अगर एक भी हलाली चुप रहा। और जैसा विरसा बात हो वैसा वारिस बात होना चाहिए, वरना सगी बहन कहती है और मार और मार और मार, इसे हाथ ना लगाना, ये बात है तू करे।
आपको सलामत। मेरे भाई थके नारे लगा लगा अच्छा चलो और ऐसे लगते हैं तो अपने लगे मैं ही पाया मेरे ख्याल को तब उनको लुत्फ आ रहा था और कोई गल नहीं। अल्लाह मौला शाही से पूछ लीजिए मैं शहीदों का वो नौकर हूँ जो बिल्कुल इस मामले में खालिश है और हजारों ऐप ऐड होंगे अल्लाह माफ करे लेकिन इस मामले में मेरे को खालिश हूँ। मैंने आज तक मैंने इस तरह के दोनों में कभी सोचा नहीं समझ नहीं किया। अलबत्ता जो करता है मैं उन पर लानत करता हूँ। खुदा आपको समझ को फिर भाई मोहम्मद भाई मौला आपको समझ गए जैसा विरसा बाप वैसा ये 2 मिनट की गुंजाइश है या थके हैं किसी ने मेरे बाद में मैंने पढ़ना है किसी ने पूछा वारिस अव्वल से कहा याद एक मसला है पूछो छोटे पुत्र आपके लिए कहा याद ही कुरान पढ़ना इबादत है हाँ कहा याद ही कुरान कैसे पढ़ना ज्यादा सवाब है जुबानी या ऊपर से देख के अली फरमाया ऊपर से देख के पढ़ना डबल सवाब है। मालिक कैसे फरमाया जुबान पढ़ के सवाब लेगी और आंख मेरा जी चाहता है काश वो साहिल मुझे मिले या उसकी कब्र मुझे मिले और मैं उसकी मट्टी को चूमूं उधर पैर चुमा कहता है याद ही ये तो हम जैसे गुनाहगारों का काम है ना कि अगर डबल सवाब चाहिए तो कुरान को ऊपर से देख के पढ़ें। हाँ याद गुस्ताखी माफ जब वारिस कुरान पढ़ता है तो मंदिर कैसा होता है फरमाया होना क्या है अल इमाम यतलूहु वल कुरान यज़ूरुहु इमाम कुरान की तिलावत करता है कुरान इमाम की ज़ियारत करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे खुदा आपको सलामत रखे इधर से बात है भाई नारे की सबक नारा हैदरी मालिक आपको सलामत रखे अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा इसका मतलब है वारिस इतना पाक तो हो कि कुरान उसकी ज़ियारत करे। याद कीजिए बाबा जी हम कुरान की ज़ियारत करते हैं और कुरान ज़ाहिर अली है। अभी केसर तकरीबन आधी का है अभी आधी हुई है लोग फिर ऐसा करते हैं जो आधी केसर है ना शादी बाबा जी उन्होंने बाबा जी को लेट पता पहले जमाने रील हुई बाबा जी सारी रील लेट के ना इको फिक्रा की ये रात की इंशाल्लाह अभी तो है ये मेरा खलूस देख लीजिए कि मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। एक बार पूछिए क्यों क्योंकि मजलिस से पहले सिफर शाह ने मुझे न्याज दे दिया। बाबा जी शेर फॉरवर्ड बताऊँ जैसे बताऊँ मैं सच बाबा जी नहीं कर जी बाबा जी सर वो हुक्म पूरा करता हूँ बादशाह जी मैं वैसे बता रहा था कि मैं एम आई राइट बाबा जी मैं थोड़ी मोहब्बत च खलोता थोड़े एहतराम क्योंकि इतना सोहना मजमा सुन रहा है मैं कहा कि दूसरे करें मेरे मुर्शद अपने हैं मैं उनसे इजाजत ले लूँगा इंशाल्लाह 7 मिनट आपने कहा है 4-5 मिनट मजीद और मैं आपको सलाम करता हूँ ताकि ये जुमला कंप्लीट हो जाए। पता क्यों क्योंकि जुमला उर्दू में नहीं है जुमला कुछ कुरान की आयात है मुसलसल पढ़ूंगा 2-4 मिनट में आपको सलाम करता हूँ। अच्छा वारिस जैसा विरसा पाक अजीजों मौलवी चलाकी करता है हाफिज कुरान हाफिज याद रखिए हाफिज और वारिस में जमीन आसमान का फर्क है। और आपको खुश खांसी चली गई लेकिन खुश खांसी ना होने के बाद मैं थोड़ा सा खांसी करता हूँ आपको मिसाल देने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। याद रखिए छोटे पुत्र है और बेटा हाफिज और वारिस में फर्क क्या है बेटा मुझे खांसी है नहीं करके आपको समझ में कब करेंगे बेटा याद रखिए हाफिज कुरान वो होता है जिसका गला खराब होना और कुरान ना पढ़ सके और पुत्र जो गला कटवा के भी कुरान पढ़े। जनाब शहीद आपको सलामत रखें जनाब शहीद आपको सलामत रखें उसका गला खराब और कुरान ना पढ़े वो हाफिज है और जो गला कटवा के भी पढ़े वो वारिस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मैं वारिस हूँ और वारिस धड़ का मोहताज भी। अब आखिरी फिक्रा वैसे आखिरी नहीं मजलिस के एतबार से आखिरी फिक्रा इतना अदब पंजाबी में कहते हैं किन्नी खिच्चे भाई मुस्तफाई नु शाह दी किन्नी खिच्चे ते शाह नु अपने नौकर दी किन्नी खिच्चे। मैं जनाब को बताऊं कि कुरान को कितनी खिच है अपने वारिस की।
मिसाल दूं आपको? मेरी मिसाल से पहले घड़ी देखिए, 2 मिनट में मैंने छोड़ देना है। मिसाल से पहले मुझे ये बताइए, एक कुरान पाक है, तमीज वाली किताब है, तहजीब वाली किताब है, अदब वाली किताब है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुरान किसकी कहे और तू तो है ही हराम है? कुरान की कसम उसने कहा है। आपने अपने अकीदे के मुताबिक ठीक कहा कि यार नहीं हो सकता। रिकॉर्ड कीजिए, वहदहुल्लाह शरीक की कसम शादी कुरान ने किसी को कहा है कि पर तू ते है ही हराम है, तू ते है ही हराम। ओ मैं हुण तुहानू हराम दा बहा के जाना बाबा जी, मौला आपको बीबी पाक तुहानू वास्ते रखी मेहरबानी। बाबा जी सूरत का नाम बाबा जी नून वाले कलम। बाबा जी सूरत नंबर 68 68, ठीक है भाई, रिकॉर्ड हो गया भाई। आयत है 9 to 13, 9 से लेके 13 तक। मैं कोशिश करता हूँ तराज करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुतिकुल्ला हलाफ में ही हमारे मशाइख नहीं मन्ना इल खैर मुक़सद के जावा मेहरबानी मुअतदिल असीम व उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी। हबीब इस झूठे चुगलखोर बदकार की बात का गुस्सा ना करना, इदा कदा गुस्सा है, ये तो है ही हराम। जी सैयद, जी सैयद दादा, बाबा जी मेहरबानी। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ज़िना से है ज़नीम। क्योंकि हमारी माँ बहन सुनिए, बता नहीं करूँगा, ये तो है ही हराम दादा। और पूछो कौन है? बाबा जी, बाबा जी, और साहब कितना बाबा जी, शाही बाबा जी। 2 नाम लेता हूँ बाबा जी उलमाए किराम के, एक शिया एक सुन्नी, जिन्होंने लिखा है कि वो कन्फर्म हरामी कौन है। पहले सुन लीजिए, या आपने इमाम का या तो कुरान पढ़ा होगा, नहीं तो पता सिपरशन के घर में पढ़ा होगा, आप में से भी मोमिन के घर में पढ़ा होगा। तर्जुमा कुरान हजरत हाफिज सैयद फरमान पीर फरमान साहब का, उसका सफा नंबर है 750 से 1 ज्यादा 675 तो बोलना समझता 676। उसके हाशिए में लिखा है 1 नंबर 2। हवाला और कीजिए, बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर जिल्द नंबर 6। ये तर्जुमा और तफसीरी और तशरीह है हजरत मौलाना दाऊद राज की, और उन्होंने बड़े बड़े राज खोले हैं। वो अहले हदीस है और ये शिया है। इसका मतलब शिया सुन्नी भाभी सब ने लिखा है कि ये कौन था। वो लिखते हैं ये हरामजादा वलीद इब्ने मुगीरा है। ये भाई पुत्र बेटा मैं पढ़ के तो जाना है, थोड़ा सारा मजमा ही लगा दे, ऐसे लगेगा जैसे विलायत का तूफान आ गया। दोनों उलमा लिखते हैं 72 फिरके वाले। शादी ये करता क्या था बाबा जी? बच्चों से कहता था मैं तुम्हें सलांती दूंगा, मैं तुम्हें टिकियां टाफी लेके दूंगा, मैं तुम्हें सुपर की बिस्किट लेके दूंगा। करना की है झोली भरो पत्थरों से, चोरी की बट्टे पाओ, नौज बिल्ला। और जैसे ही आमिना का लाल गुजरे, मुझे माफ कीजिएगा, इसके पीछे पीछे जाओ और पत्थर के टुकड़े फेंक के कहो, माफ कीजिएगा मुझे माफ कीजिएगा, ये पागल है, ये दीवाना है, इसका दिमाग काम नहीं करता। अल्लाह फरमाया हबीब गुस्सा ना करना, ये हरामजादा है। अल्लाह ने कुरान बना के क़यामत तक बता दिया, जो भी मोहम्मद के दिमाग पे हमला करे अखबार का हरामी नहीं, कुरान का हरामी है। आपको सलामत है। कल कौन सा दिन गुजरा? आलम अरवा में आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले लोहे महफूज में कुरान था और अर्शे बरी पे अली था। अल्लाह ने बंदो नबी पाक का कहने मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि नवी तक पुरानी है, जब से अली है सुनोगे। कुरान ने पूछा या अली, ये मुकालमा लंबा है आधे में, या अली एक बात कहूंगा बस, या अली रसूल कहते हैं कि या अली अंता कुरान नातिक, या अली तू भी कुरान मैं भी कुरान, तू भी तैयब मैं भी तैयब, तू भी ताहिर मैं भी ताहिर, तू ही तैयब मैं भी तैयब है और तू सैयद है। या अली क्या कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपके पास हो मेरे पास ना हो? बाबा जी कुरान क्या है? अली का मुकाबला कमियों से करवाने वालों या अल्लाह कर हलाली बोले। बाबा जी जो मैं बयान करूंगा अगर तारीख हदीस में ना हो, भिंबर के मेन चौक में उल्टा लगा के मत्थे में 6 नहीं 10 गोलियां मारो कत्ल माफ,
ورنہ یہ جھولی خالی ہے پیسوں سے نہیں دعاؤں سے. شاید آپ سے لے کے آخری حال تک, ہاں آخری بات میں سب کی دعا میں بنا دیجیے. یعنی کوئی ایسی کوالٹی ہے جو میرے پاس نہ ہو آپ کے پاس ہو. علی فرمایا جو کچھ تو ہے وہ کچھ میں ہوں. ہاں کچھ فرق ہے, یعنی کون سا؟ فرمایا پہلا فرق یہ ہے تو جتنا بھی پاک ہے تو مخلوق کے گھر نازل ہوا ہے, میں خالق کے گھر. مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے اس فکرے پہ شادی کوئی بندہ کہے اسی سمجھ سے پڑھا لکھا بندہ ہے, ایک غالی ہے, ایک نصیری ہے, ایک ملنگ ہے, جس نے جو فتویٰ لگانا ہے مجھے پرواہ نہیں. اگلے فکرے پہ شیعہ ماں کا پتر چپ رہا قبر تک میرا حق بنتا ہے. فرمایا قرآن دوسرا فرق یاد رکھ, اور محمد مصطفیٰ کا فرمان گواہ ہے قیامت تک تجھے تو حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہے, میرا نام حلالی کے سوا کسی کی جواب ہے. علی علی صرف حلالی. بھائی مولا پنجر بات آپ کو سلامت رکھے. وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک اندھے صحابی نے کہا یہ شام کے دربار میں علی میں تھوڑی ہائے تو سکے جاؤں آج سکے جاؤں آج جس پاک سیدہ طاہرہ کی شہادت ہے وہ میرے مرشد بنے گے, چونکہ بات میرے ذاکر کا حق بنتا ہے. میں صرف تعارف بابا جی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کفن کے انتظام سے یاد نے کیا. کوئی یہ جو ذاکر آپ سے میں کہتا نا کہ عرش سے کوئی پلنگ اترا تھا, یہ روحانیت ہے. سید بیٹھے سے پوچھ لیجیے پلنگ دور کے بعد 4 لکڑیاں تھیں. یہ ساری کہانی دکھی کہانی آپ کو سید سنائیں گے کہ بی پاک کیسے شام دوبارہ گئی, کیسے قتل ہوا, کیسے جنازہ اٹھا, کیا سرکار کی حق کی بھی اس کا ہے تو آخر میں پڑھے, اور پھر حق کفن دفن کا ان کا ہے چونکہ وہ سید ہے. میری اوقات ہی کیا ہے یہ چیزیں پڑھوں. میں ہاں 2 لفظ کہتا ہوں آغاز کے اور آپ کو سلام کرتا ہوں. سید دادا اللہ نے آپ کو بنا فرمایا بابا جی مصائب شیعوں کا یہاں سے شروع ہوا. تو میرا مطالعہ ہے کہ 1950 زخمیں پر بدن چھوٹے پتر جو حسین کے بدن پہ 10 محرم کو قمیض تھے نا پتر, اس میں 1950 سوراخ سب کے جمع تو اٹھی آج سب کے جمع ایک بار جو میرے مرشد کے بدن پہ قمیض تھے نا 10 محرم والے جو اپنی بہن سے مانگی تھی اتنی میں سوچ لا جاتا ہوں فی حد اے میری زینب بہن مجھے وہ قمیض دے کہ کوئی کمینہ اس طرح راگ نہ ہو, اتنی راگ فخر کرتا ہوں عمر لاتا ہوں میں حسین سے جگہ جگہ سے پڑھا. یہ آپ نے 10 محرم کا مضمون سنا ہوگا, سب کو آتا ہے. وہ قمیض جس میں 1950 سوراخ تھے. جو سنی بھائی بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے, جو شیعہ بیٹھا ہے 15 کی رات ہے, سیدہ کی شاد کی رات ہے. مہربانی سید سے لے کے آخری بات تک ایک مرتبہ باوازے بلند ہائے کیجیے گا. پائتن پاک کی قسم 1950 زخموں والی قمیض رسول کی قبر پہ رکھ کر بی بی پاک نے کہا تھا نانا تیری نبوت کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے زینب زیادہ. نانا مجھے بڑا مارا گیا ہے, اور جناب سیدہ آپ کی ہائے میں جاؤں نانا مجھے بڑا مارا گیا ہے. میں مسائل میں تھوڑی سی جلدی کروں گا تاکہ میں مجھ سے مل دوں. میں بسم اللہ کرا فضائل آپ نے اپنی مرضی کو بڑھایا اور لمبا بڑھایا 1.5 گھنٹہ ہو گیا. میں مسائل صرف 2 جملے, وہ بھی اس لیے کہ پلیز زبر شاہ نے مجھے کہا ہے کہ مول صاحب 2 جملے پڑھا جائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ میرا خطیب کا اسٹائل اور ہوتا ہے, مولا کے ذاکر کا انداز اور ہوتا ہے. ورنہ مسائل جو ہے وہ اللہ نے خطاب کو صدات کو ہی کیا ہے, اور خاص کر کے نصری ذاکرین جو ہے وہ مسائل کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. لیکن میں چونکہ سید صاحب کا حکم ہے 2 فکر سن لیجیے. یہ بچہ بیٹھا ہے چھوٹا بچہ, اس بچوں کا ایک بیٹا کھڑا ہو اور اوپر چلا جا جہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اور بچہ جا کے وہاں دیکھ کہ کوئی ایسی خاتون جس کی ایج 50-60 سال ہے اوپر جا کے دیکھ وہ کیسے بیٹھی ہے. تو یہ بچہ کہے گا کہ وہ ٹیک لگا سہارے پہ بیٹھی ہے. اگر کوئی ضعیفہ یوں بیٹھی ہو تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ رسول پہ شادی بی بی زینب یوں بیٹھی تھی, چھوٹا بچہ امام سجاد کے بعد کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا میری پھوپھی. تو ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ فرمایا تھکی بہت ہے. تو کہتا مولا جب ضعیفہ بی بی تھکتی ہے نا تو وہ شانہ دیوار سے لگاتی ہے, ماتھا کیوں؟ سجاد کی چیخ نکلی. فرمایا کیا کریں مارا بڑا گیا. اور میں بسم اللہ کہا بابا جی بسم اللہ کہا. فرمایا میری پھوپھی کو اتنا مارا گیا ہے کہ میری پھوپھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتی. میں آپ کو اپنے معاشرے کی مثال دیتا ہوں, میں نے 1.5 سے 2 منٹ پڑھنا ہے اور میں اپنے پیروں کو پیپر دے رہا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں,
हमारे पंजाब का कल्चर ये है, हो सकता है आपका भी यही कल्चर हो। हमारे पंजाब का शादी जानते हैं हम, वज़ीराबाद हमारा एक ही जगह है, शादी जानते हैं हमारे पंजाब का कल्चर ये है, बहन ऊँटी की हो या बहन सैयद की हो, जब हमारी बहनें ससुराल से लेके आती हैं ना हमारे सामने, तो हमसे मिलने का अंदाज ये होता है, भाई आगे बढ़ता है और अपना हाथ उसके सर पे रखता है। इस अंदाज सबके जमा जगह मेरे इलाके में समझिए ना, शादी इस अंदाज को हमारी पंजाबी में कहते हैं वीर ने बहन के सिर पे प्यार दिता है, भाई ने बहन को प्यार दिया है। पैंतन पाक की कसमें, तुम्हारी हाय की कसमें, तुम्हारियां फसदी अखां की कसमें, जब उजड़ के बीबी ज़ैनब मदीनी आई है ना, एक ही भाई बचा था हनफिया, आगे बढ़ के यूं हाथ रखना चाहा, बीबी सर कह के दिया हाथ ना रखी, उन्होंने बड़ा मारा। मैं बिस्मिल्लाह करा, मुझे बसत के जावा, मुझे बड़ा मारा गया है। एक लम्हे के लिए मैं चाहूंगा, एक लम्हे के लिए कि आपकी आवाज रुके, आप सांस लें, और मैं एक ही रिवायत आपको आधे मिनट की सुना के मैं सैयद आपको मिलत दूं। मैं खुद गुजारिश कर रहा हूँ, मौला आपको सलामत रखे, एक लम्हे के लिए जरा आवाज को रोकिए, जरा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाए, फिर आवाजें बुलंद आप हाय करेंगे, मैं मिनट छोड़ दूंगा। कोई भी जाकर ऐसा नहीं करता कि वो रोते हो मुझे कहे कि खामोश हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा जाकर हूँ कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीबी पाक के सदके एक मिनट यूं सांस लीजिए, अब आराम से रिक्वेस्ट करिए। शादी बाबा जी एक वक्त ऐसा भी आया जो सैयद वास्ते सा मेरा मुझे रोक दिया इस गल क्यों छड़ के जाओ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था ना जो सैयद की वास्ते सा और ऐसे उजड़ने क़यामत तक उजड़े ने, वो तो पसंद जो फिर बाहर आएगा। मैं बिस्मिल्लाह करा, एक वक्त था भाई जब सैयद आबाद थे, बिस्मिल्लाह करा तुम्हारी हाथ फड़ के जावा, मैं आप चुप कर आया तो अगला फिक्र ऐसा मेरा अपना दिल रोक है। शादी जब सैयद आबाद थे ना बाबा जी, तब की बात है, अपने बरामदे में पाक हिजाबे अली, ये पाक सईदा हिजाबे अली है, पाक हिजाबे अली नमाज पढ़ रही थी और नमाज के बाद मुसल्ले पे तिलावत कर रही थी। मेरा मौजूद कुरान था, आखिरी फिक्रा, रोशनदान था सईदों के बरामदे में, वहां से सूरज की हल्की सी किरण अंदर आई और मेरे पाक के साथ में पड़ी, गर्मी थी, कमरे से हुसैन इब्न अली निकले, मैं पढ़ के थोड़ा सर हो गया घर जा फिर होने याद कर ले। जब मेरे मुर्शिद हुसैन ने देखा कि मेरी बहन तिलावत में मसरूफ है और सर पे धूप है, तो हाय ने कसम पे कितनी देर हुसैन यूं खड़े पता है जी बाबा जी बिस्मिल्लाह, बाबा जी मौला थोड़े सफर में खत्म होना, तुम आप बेटे बड़े मसादी हो, सैयद हो ना, सैयद तो घर की गल तो रोक रहे हो, बिस्मिल्लाह करा शादी यूं करके ना सही शबीर यूं खड़े। अजीजों कुछ मेरी माओ बहनों बेटियों, कुछ देर के बाद बीबी पाक ने सर उठाया और देखा ऊपर सखी हुसैन है। भाई आप कब से खड़े हैं? पर मैं जब से रोशनी आ रही थी बहन करता हूँ, मेरा दिल कर जाए कि मैं अद्धा जुमला खां, अद्धा तुसी आप सुन के ते आप समझ के हाय करो, मेरा पढ़ा लिखा शहर हो गए वजाहत की लोड़ नहीं, कब से करता मैं काफी देर हो गई। हुसैन तू अली का बेटा है, मैं भी अली की बेटी हूँ, एक बारी मेरे लिए उच्ची हाय करा दे, मैं जा फिर ज़ैनब का वादा हुआ, अगर तू कभी धूप में सोया, और मैं बिस्मिल्लाह जी से दादा जी से दादा, अब हाय वाजिब भाई बेटा, अब हाय वाजिब, जितने नौजवान हैं शहीदों के काम में हाय करना वाजिब है, जैसे नमाज वाजिब है। मैं अगर तू कभी धूप में सोया, ज़ैनब का वादा हुआ मैं भी तेरे ऊपर साया करूंगी। और जिन्हों सारी सईदा दी उजड़ी कहानी याद है, एक बार समझ के हाय करा दे, हुसैन रो के शादी कहते हैं ज़ैनब बहन जरा सोच के वादा करना, अगर मैं धूप में सोया ही घर से बाहर, फिर वादा कैसे पूरा करेगी? 20 सेकंड ने कि बाजमात हाय होने तो आसान कर देना, इस तो औखा जुमला ज़ैनब मुझ तो भाई समझ को नहीं कि मैंने माफ करा दी, अगर मैं सोया ही घर से बाहर। बीवी पाक रोक कहते हैं हुसैन अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए हैं, मैं अपने भाइयों से कहूंगी जाओ शब्बीर धूप में सोया है, जाओ जाके साया करो। चीख मार के हुसैन कहता ज़ैनब ख्याल करना अगर किसी के भाइयों की कतार ही मारी जाए, मैं बिस्मिल्लाह करा मेरी बहन शादी, मेरी बहन फिर ये वादा कैसे पूरा करेगी? तो मैं हुसैन अगर मेरे भाइयों की कतार मारी गई, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, एक का नाम मौन है, एक का नाम मोहम्मद है। शादी मैं अपने बेटों से कहूँगी जाओ तुम्हारा मामू धूप में सोया है, जाओ जाके मामू पे साया करो, सबके जमा तेरी हाय की कसमें। इमाम दूसरी तरफ मुंह कर कहते हैं ज़ैनब अगर किसी की जोड़ी भी मारी जाए, अगर किसी के बेटे भी मारे जाए फिर कैसे पूरा करेगी? फरमाया हुसैन शादी मुझे 2 का पता है, 3 का। बिस्मिल्लाह सैयद, सिपशाह सैयद,
मखदूम शाह जी 3 सैयदों को पता, बाकी जितने सैयद हैं अपना पुत्र नौकर समझ के जवाब करना कि जेडे मेरी तरह सैयदां दे नौकर हो तुसां इंज उच्ची हाय करनी है, इस बीबी का पुरसा इन्हां सैयदां नूं देना है, ये कोई मामले तो तक जाएंगे। एक बार उच्ची हाय करके मैं सैयद और सैयदजादियों से शादी माफी मांगता हूं, अगर ज़ैनब बेटे भी मारे जाए फरमाया फिर मैं अपनी चादर से तुझ पे साया करूंगी। फरमाया ज़ैनब अगर कोई चादर भी ले जाए, फरमाया हुसैन फिर अल्लाह ने औरत को एक नेचुरल पर्दा दिया है और वो बालों का पर्दा है, मैं बाल को घेर के आगे हाथ करके अपने बालों का साया बनाऊंगी। चीख मार के हुसैन कहता ज़ैनब अगर किसी के हाथ भी बंधे हो